ओके, बहुत बहुत बधाई हो हरीश भाई मोदी आपको एंड जूस लाफ्टर ग्रुप. I really wish, I thank you a lot that you are doing a great job हरीश भाई, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन, बिकॉज जो आप हर रोज लोगों को फ्री में कराते हैं लाफ्टर योगा, विच इज फैंटास्टिक. कोई नहीं करा सकता है और मैं समझता हूँ आप 25-30 साल से करा रहे हैं. दैट्स ग्रेट. तो सबसे पुराना ग्रुप जो है आप ही का है और उसके बाद हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ 108 सूर्य नमस्कार ग्रुप, जो 108 सूर्य नमस्कार ग्रुप. आई बीन गिविंग योगा free of cost every Saturday, free session, and it's ongoing from last 11 years. And I've authored a book. I'm 45 years experience. I've authored a book, Making of a Yogi. See, and yeah, so काफी आप नेक काम कर रहे हैं. सीनियर सिटीजन को जो है कोई इतना कराता नहीं है. आप बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं. बहुत बहुत बधाई हरीश भाई मोदी. थैंक यू. જેએલસી પરિવારને રજની મહેતાના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જીનેન્દ્ર. અને હરેશભાઈ મોદીએ એની પોતાના નેતૃત્વ હેઠળ બધી પ્રવૃત્તિ એટલી સરસ કરાવે છે ને એમાં હું જોડાઈ છું અને બધા જ સભ્યોને મજા આવે છે અને મને બી ખૂબ મજા આવે છે. અને પહેલાં તો શરૂઆતમાં 30-35 જણ હતા, હવે એમાંથી આગળ વધીને અત્યારે 200 જેટલા થઈ ગયા છે. એક તો એ મોટો પરિવાર થઈ ગયો. ઘરમાં આપણો પરિવાર હોય પણ આ પરિવારનો આનંદ સાવ જુદો જ છે અને એમાં આપણને બહુ મજા આવે છે અને સંતોષ મળે છે. રવિવારે અમે નાસ્તા પાણી સાથે કરીએ છીએ, ટ્રીપમાં પણ આવી રીતે જઈએ છીએ, મજા મસ્તી કરીએ અને આનંદ બધા કરીએ છીએ. એટલે આમાંથી આજે આપણી જે અંદરની કંઈ બી ઓલી અંદરની જે કંઈ આપણે ઓલું થતું હોય ભૂલ, તો પણ આપણને ત્યાં સુધારી લઈએ છીએ. એટલે મને તો આમાં ઘણો ફાયદો થયો છે. શારીરિક માનસિક રીતે તો ઘણો ફાયદો થયો છે. શારીરિક રીતે આજે હું સ્વસ્થ એટલી નહોતી પણ હવે એટલી સ્વસ્થ બની છું ને મારા કેન્સરના ઓપરેશનમાં મને આ પરિવારે ખૂબ સાથ આપ્યો છે. ઘરના પરિવારે તો આપ્યો જ હોય પણ આ પરિવાર એક મોટો આપણને સંતોષ મળી ગયો કે આપણા ગમે તે ટાઈમે આવીને બધા ઊભા રહી જાય છે. આનાથી મોટું વિશેષ આપણને શું જોઈએ છે. અને હરેશભાઈએ જે બધાને જોડીને રાખ્યા છે એ એની એક કળા છે, આવડત છે કે એમાં આપણે મોતીના મણકા જેમ પરોવીએ અને એ બધા જોઈન્ટ થઈને એક આખી માળા બને છે. એવી જ રીતે અમે બધા બી આજે એવી રીતે બધા જોડાઈ ગયા છે. બસ આને ઘણી પ્રવૃત્તિ હવે તો બધી કરીએ છીએ. એટલે આમાં તો બધાને ફાયદો થાય છે. પણ મને મારો હું અનુભવ કહું છું કે મને તો ઘણો અનુભવ થયો છે કે મારી તબિયત સુધરી ગઈ છે. જે અત્યારે આપણે કોક વાર દરરોજ નથી જઈ શકતી પણ એવરી સન્ડે તો હું જાઉં છું. એટલે હું તો એવું જ માનું છું કે ભગવાન બધાને એવી રીતે આવવાની, બધા એવી રીતે રાખે કે દરરોજ આવવાની પરમાત્મા બધાને હિંમત આપે. બસ આ રીતે મને ઘણો ફાયદો થયો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જીનેન્દ્ર. મોદી સાહેબ અને ક્લબના મેમ્બરો, મારું નામ દિનેશ શાહ છે, મારી વાઈફનું નામ પન્ના શાહ છે. અમે જેએલસીમાં 1 વર્ષ પહેલાં જ મેમ્બર બન્યા. અમને હવે મેમ્બર બન્યા ત્યારે અમને હવે એવું નથી લાગતું કે અમે નવા મેમ્બર છીએ. એટલા બધા કોઓપરેટિવ માણસો છે, એટલા બધું અમને ગમે છે. એકબીજાને જોના મોઢામાંથી ઓટોમેટિક સ્માઇલ નીકળી જાય છે. બીજું એ કે આ દરેક પ્રોગ્રામમાં દરેક મેમ્બરો એટલા ઉત્સાહથી પાર્ટ લે છે કે અમને બહુ મજા આવે છે. 28 વર્ષ એક નંબર નથી, આ એક પેઢી છે. 28 વર્ષમાં તો આખા માણસો બદલાઈ જાય છે. આ જે નથી બદલ્યું તો આ જેએલસીમાં મોદી પર બધાનો વિશ્વાસ, સાથ અને સહકાર. અને કહેવાય છે કે रिश्ते बनाना बहुत आसान है પણ रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है. પણ મોદીએ આપણે પ્રૂવ કરી દીધું છે કે આ રિશ્તા નથી, આ એક એને આપણે વિરાસત આપી દીધી છે. અમે એટલું એન્જોય કરીએ છીએ આ ક્લબમાં. અમે બધાનું અભિવાદન કરીએ છીએ. જે પહેલાં દિવસોથી ફર્સ્ટ ટાઈમથી જે માણસો મેમ્બર બન્યા છે અને જે નવા મેમ્બર જોડાતા એ બધાનું અમે અભિવાદન કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. हेलो मेरे प्यारे जेएलसी फ्रेंड्स,
many congratulations to you all JLC friends। अपने JLC 28 साल पूरा कर भर युवान क्लब बन रही है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी क्लब अब यंग हो रही। मैं ज्योति भूपेंद्र बावीसी बेलेपार्ले ईस्ट में रहती हूँ और करीब 8 साल पहले मैं JLC में मेंबर बनी हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ मोदी जी की कि मुझे मोदी जी अचानक से छाजड़ साहिब के वहाँ महावीर इंटरनेशनल का मेडिकल कैंप था, उसमें मिल गए और हमारी मुलाकात हुई। मिलने के बाद करीब 1 साल के बाद मैं जूं क्लब पे आ पाई और बाद में मैं मेंबर बन गई और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस शानदार क्लब के मेंबर हूँ। मैं प्रोफेशनल लेडी हूँ, मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर हूँ, ज्वेलरी के वैल्यूअर हूँ। जो वैल्यूशन ज्वेलरी की करती हूँ, जब मुझे लाइसेंस मिला तब भी मैं पूरे इंडिया में दूसरे नंबर की लेडी थी और गुजरात महाराष्ट्र में फर्स्ट लेडी थी जो मुझे ये लाइसेंस मिला था। और तभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बखूब ही मेरे प्रोफेशन निभा रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ इसमें। और परम कृपाणु गुरुदेव की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद से और उनके कहने से मैं एस्ट्रोलॉजर भी बनी, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्टियर, वास्तुशास्त्री और ज्योतिष विशारद हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट बाय भारतीय विद्या भवन से मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है और ये भी मैं प्रोफेशन करती हूँ। ये मेरे दोनों प्रोफेशन से मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं कर रही हूँ। साथ में मुझे प्रभु भक्ति का बहुत ही शौक़ है और मैं परमात्मा की आंगी वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से करती हूँ, वो भी परमात्मा की कृपा से कर रही हूँ। और आज मैं पार्ला ईस्ट में चिंतामणि एकेडमी में आंगी की टीचर भी हूँ और सब प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे को आंगी सिखा रही हूँ। ये भी एक परमात्मा की देन है। और मुझे सबसे अच्छी देन तो परमात्मा की ये लगी कि मैं JLC की मेंबर बनी और JLC के साथ दिन बीतते गए, बरस बीतते गए, ऐसे में मुझे ऐसे लगना लगा कि मेरा फैमिली तो है ही, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए है। मैं एक फैमिली ही समझती हूँ। यहाँ के मुझे जो प्रेम मिला है, जो वात्सल्य मिला है और जो अपनापन मिला है, शायद ही किसी को कहीं मिल पाए। ऐसी क्लब जो इसमें इतने अच्छे हमारे लीडर्स, हरीश मोदी जी तो लीडर है ही, सब जानते ही है जूं वाले कि वो लीडर है, बखूबी ही वो सबको निभा रहे और सबको बहुत ही प्रेम, आदर, सत्कार देते हैं। लेकिन साथ में वो ये इतने सारे हमारे पिलर है, पिलर पे जो क्लब खड़ी है उसमें हम सबको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और सबको बार बार कहते हैं कि आप में टैलेंट है वो निकालो। हम सीनियर सिटीजनों को सब मिलके हमको जूनियर बना दिए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे में फिर से जवानी आ रही है और हम फिर से खिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने 1-2 बार प्रोग्राम भी दिए हैं। मुझे लगता है कोरोना में मैंने पूरे हमारे महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बताया था। महावीर स्वामी का माता का जब गर्भ था तब उसके सपने आते थे, परमात्मा का जन्म कैसे हुआ, वो पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया था और सभी ने मेरे ये प्रोग्राम में भाग लेके बहुत ही अच्छे जैन स्तवन और भजन गाए थे। उसमें जसवंत भाई ने जैन न होते हुए भी पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा जैन भजन गाया था। वो आज भी मुझे याद है कि जसवंत राय ने बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति भाव से ये भजन गाए थे। और उसके बाद जब 2-3 साल पहले हमने पतंगोत्सव मनाया था, वो प्रोग्राम भी मैंने
किया था, काइट महोत्सव चालू किया था, उसमें भी सब पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी तरह से भाग लिया था और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। और रियल में ऐसा लगा था कि हम गुजरात में मिल के साथ में पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा था। और बार बार मोदी जी सबको कहते हैं कि आपने पूरी जिंदगी सबके लिए काम किया है, अभी आप अपने लिए करो और अपना सब गम दुख दर्द अकेलापन भूल के यहाँ अपनी जेएलसी में आओ। और जेएलसी के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हर कोई आ सकता है, हर कोई यहाँ आके स्वस्थ मस्त रह सकता है। ऐसे जेएलसी के हमारे जो मेन पिलर प्रवीण भाई, हरीश मोदी जी और जशवंत भाई, जीतू भाई, अकील भाई और कारिया जी, इतने सारे हैं, शालिनी बेन, बीना बेन, दादा दादी, किस किस का नाम लूँ। और ये हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर राजेश्री जी, हमारे बिंदु जी, जो इतने सारे प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें फ्री रहने ही नहीं देते। और ये सब प्रोग्राम में रह के हम पूरी तरह खिल चुके हैं। रियल में हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कोई एज हुई है, हम अबाउट 65 है, ऐसा नहीं महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम 16 के ही है। और हम बहुत ही अच्छी तरह से प्रोग्राम सब कर रहे हैं और सबकी एक्टिंग वगैरह करवाते, इतनी मेहनत करके सबको इतना करवाते हैं कि यहाँ क्या नहीं है। यहाँ छोटे बच्चों की तरह हम खेलते भी हैं और बच्चे बन के हम प्रोग्राम भी करते हैं। और यहाँ एस्ट्रोलॉजी है, गेम्स है, पोएम्स है, शायर है, हास्य का प्रोग्राम है, जीतू भाई जैसे हास्य रसिक जोक वाले हैं और सबको हंसाते हैं, सब खिलखिला के हंसते, दिल खोल के हंसते हैं। ये हमारा जेएलसी हमारे लिए आन बान शान है और हमारा सब जेएलसी मेंबर की जान है। हरीश मोदी जी, आपने सबको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, सबको बुला बुला के सबके अंदर जो टैलेंट दबा है वो आपने निकाल के खिलाया है। तो रियली हम सब आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी है, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जिन्होंने सपोर्ट दिया, वो सबके मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ बिंदु बेन की खास, कि जिन्होंने मेरी हर एक तपस्या में इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए और हम सबको जैन धर्म के क्या है वो सब बताया। इसलिए और जो प्रोग्राम किया इससे सबको इतना अच्छा लगा है, सब आदेश्वर भगवान क्या थे वो पहचानने लगे। ये हमारे जैनों के लिए गर्व की बात है। अजैन होते हुए भी यहाँ सब जैन बन के भाग ले रहे हैं और मेरे हर एक तपस्या के पालना करवाते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इनके हाथों से मेरा पालना होता है और मैं आगे भी आप सबके विशेष से अच्छे अच्छे तप कर सकूं, ये मेरी उम्मीद है कि मुझे और भी तप करने हैं। और सब आप वेल विशर हो और आपके विशेष से मैं और कर पाऊंगी। मोदी जी और जसवंत भाई, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी सिखाई, आपने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, आपने जो हमें सिखाया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जेएलसी मीन्स जिंदगी। राजीव भाई, आपका जेएलसी में स्वागत है। जैसा कि मैंने देखा कि आप हमेशा यहाँ पर आके मेडिटेशन भी करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअली और रिलीजियस पर्सन हो। अभी आपको मालूम है कि जेएलसी के 28 साल पूरे हुए 30 नवंबर को, तो आपको आत्मचिंतन करते हुए मैंने देखा है, आप बहुत इस चीज का दूसरे लोगों को गाइड भी कर रहे हो और दूसरे लोगों को बेनिफिट भी मिला। आप बताइए। जेएलसी का एक फाउंडर मेंबर जैसा ही मैं हूँ। 97 में मेरा लड़का छोटा हुआ था तो उसकी खुशी में हमने भजन का प्रोग्राम रखा था घर पे, तब मोदी जी हमारे घर पे आए थे और मेरे एक दिलीप भाई करके वो भी आए थे और तब से हमारी मोदी जी से पहचान है। और फिर उन्होंने हमको जुहू बीच पे आने को बोला, तब से हम आता हूँ। और एक महीने देखा कि मोदी इतने स्टॉन्च लीडर है, फॉलोअर है कि चाहे कोई आवे ना आवे, शाम को जुहू बीच पे सुबह 7 बजे, इवन बहुत सी धूप में भी या बहुत सी बारिश में भी वो आते हैं और 7 बजे बराबर तालियां बजना चालू हो जाती है। तो ये मोदी का सबसे बड़ा गुण है।
और पंक्चुअलिटी बहुत है कि टाइम का इतना बंधन रखते हैं वो कि 8:15 बजे खत्म करना यानी खत्म करना ही है। कोई वक्त आवे तो उसका पहले ही उसको दे देते हैं और अगर वो लंबा करने में लग जाता है तो मोदी जी खड़ा हो जाता है तो एक ऐसा सिग्नल मिल जाता है कि अभी इसको खत्म करना है। मोदी जी ने आज तक बहुत सारे वक्ताओं को बिना कोई उनको मानधन दिए बगैर लाया है और वो हिसाब से हम लोगों को बहुत सा नॉलेज मिला है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे संगीत हो, चाहे डॉक्टरी नॉलेज हो, नृत्य के लिए लाया, संगीत के लिए लाया, ये सबसे बड़ा उनका गुण है। मोदी जी के साथ साथ मुझे राजीव जी आपसे भी बहुत कुछ सीखने को और करने को मिला है। आप एक सीनियर मेंबर और फाउंडर भी हो जेएलसी के, तो मैंने आपसे भी यहाँ पर काफी चीजें देखी है कि जैसे आप वृंदावन भी जाते हो, मथुरा जाते हो, भक्तिमय रहते हो, यहाँ पर आप जो भजन सुनते हो, गुरबाणी सुनते हो, तो ये जो आप जो लोगों को जो दे रहे हो ना, इससे मेरे को कुछ लोगों ने बोला है कि राजीव जी बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव है और बहुत रिलीजियसली भी एक्टिव है। तो मैं नेक्स्ट टाइम ये चाहूंगा कि एक रिलीजियस ट्रिप भी अपन जेएलसी में करें। पक्का पक्का। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई, थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से सबको गाइड करते रहो, आप हमारे बड़े भाई हो। एक मिनट और मोदी जी अपनी जगह, लेकिन आपका तजुर्बा उनसे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया 1 साल में। बागबान में जब अमिताभ और हेमा मालिनी जब दूर होते हैं तो वो जब दूर जाते हैं तो हेमा मालिनी जब नटती थी पहले, तो बाद में नटती नहीं है। वो बोलती है कि मैं किसके लिए नटू दम ये करूं। तब ऐसा होता है कि जेएलसी के ये प्रोग्राम होते हैं और जब मोदी जी बोलता है कि बन ठन के आओ, तो सारे लेडीज हमको भी एक ये जेएलसी जरिया मिला है कि जहाँ रैंप वॉक होता है, फैशन होता है, तो वो हिसाब से मोदी जी ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सबको कि जिसमें सब इकट्ठे आते हैं, एंजॉय करते हैं और अपनी एक्टिविटीज देख के, हमारी एक्टिविटीज देख के हमारे बच्चे बोलते हैं, दे आर जेलियस कि भाई आप लोग ये उम्र में इतना सब करते हैं। तो सबसे बड़ा जेएलसी का ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोगों को एक जरिया मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम अपनी टैलेंट है, हमारी जो कुछ आवड़ है वो हम पेश कर सकते हैं और एक ग्रुप मिला है, बहुत अच्छा फैमिली है। तो जहाँ सब लोग भी इकट्ठा होते हैं कि जिसमें कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, वो अपने आप को अकेले पाते हैं, लेकिन जेएलसी में जब आते हैं तो उनको एक अपना परिवार मिला है और सब एक सुबह 7 बजे यहाँ आने का एक बहाना है, एक कारण है। तो वो हिसाब से लोग आते हैं, दिन अच्छा जाता है, हर सुबह इधर आने का एक मन होता है। 50 से 70 साल वाले, 80-90 साल वाले सब एज ग्रुप के यहाँ पर है। सब जनरेशन को मतलब यंग फील कराते हो आप। आप भी यहाँ पर सबको बहुत अच्छे से मैंने देखा है कि मोटिवेट करते हो। थैंक यू वेरी मच राजीव भाई। ओके। ऐसे आपका गाइडेंस मिलता रहे, जेल से आगे बढ़ता रहे। थैंक यू।